So class, good morning all of you. I am Durgesh Kumar Pandey. Today class, I am going to explain a chapter globalization. We start from the meaning of globalization. Globalization means the related to flow of people, flow of ideas from one part of the country to another part of the country, flow of goods and flow of services from one part to another part. And the worldwide interconnectivity means all the worlds are interconnected, not only the market but peoples are interconnected, and this is the region of globalization कि capitals are flow from one country to another country, big MNCs who are investing money to a small poor country, and a country is taking loan from another country, so capitals are moving and goods are moving, and due to service the opportunities of jobs are available, so peoples are moving and services is also moving. So these are the globalization class. And what are the causes of globalization? The causes of globalization is the historical, have a historical basis class. You know, many hundreds years ago, uh, the Europeans were come out from the Europe and searching a new land, new routes for the trade with the Asia, and now the America was invented. So many parts of the world are invented, and the worlds are interconnected. So the causes of globalization is means they have some historical causes. Uh, Peoples are searching new lands. Peoples want to trade, and they want to search a new routes for trade to some continent like America was searching. So this is the region historical causes of globalization में आपका historical causes आ गया. And you know, हज़ारों साल पहले द जो वेंग सांग मैगन थी, दे आर मूविंग फ्रॉम वन अदर, जो ट्रैवलर्स थे मूव किया करते थे, दे कलेक्ट द आइडियाज़ फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट. जैसे Buddhism was originated in our country, but the travelers spread in all over the Asia class. तो आइडियाज़ मूव करती हैं क्लास, पीपल्स मूव करते हैं, एंड मेनी टाइम्स द मुस्लिम रूलर्स, मुस्लिम मोहम्मद गोरी, गजनी आर कमिंग टू इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट region. So peoples are moving and ideas are moving. So they have a strong basis of globalization class. And if we are talking about the causes of globalization, some other thing is like a technology. Technology is a very important thing. कि invention of telegraph, telephone and microchip is more recent time has the revolutionized communication. जो communication है उसमें एकदम क्रांति ला दिया है क्लास, बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के एक कोने से आदमी बैठ करके दुनिया के दूसरे कोने में बात कर सकता है क्लास. देन यू नो कि जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ और यूरोप में इसकी वजह से प्रिंटिंग प्रेस की खोज होने के बाद से यूरोप में नेशनलाइजेशन हुआ, तो and the ability of ideas, capital, commodities and the people to move more easily from
one part of the world to another has been made possible largely by the technological advance। तो टेक्नोलॉजी के कारण ही अब ऐसा संभव हो पाया है कि जो पीपल्स हैं, आइडियाज़ हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो बहुत ही आसानी से और जल्दी मूव कर पा रही हैं क्लास से। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांस की वजह से हुआ है क्लास। द पेस ऑफ दिस फ्लो में वेरी फ्रॉम इंटेंस, जैसे इसकी जो रफ्तार है वो हमेशा बदलती रहती है क्लास। द मूवमेंट्स ऑफ कैपिटल एंड कम्युनिटीज़ will most likely to be quicker and wider than the movements of people across the different part of the world। देखो, जो पूंजी का मूवमेंट ज़्यादा होता है और कमोडिटीज़ यानी गुड्स ज़्यादा मूव कर रहे हैं कंपैरिजन टू ह्यूमन बींग्स की तुलना में। दुनिया के अलग अलग कोने में जो पूंजी का एक जगह से दूसरी जगह जाना है, गुड्स का जाना है, वो ज़्यादा हो रहा है ह्यूमन बींग्स की तुलना में। तो globalization however does not emerge merely because the availability of improved communication। What is important is for the people is the different part of the world to recognize these interconnectedness। दुनिया के जो तमाम देश हैं इस इंटरकनेक्टेडनेस को पहचान रहे हैं with the rest of the world। Currently, we are aware of the fact that the event taking place in one part of the world could have an impact of the another world। हम लोग जानते हैं कि दुनिया के एक कोने में जो घटनाएं घटती हैं वो दुनिया के दूसरे कोने पे असर डालती हैं क्लास। लाइक बर्ड फ्लू हो गया, सुनामी हो गया ना, वो पर्टिकुलर किसी एक स्टेट से नहीं जुड़ा है क्लास। एंड इट डज नॉट द रिस्पेक्ट द नेशनल बाउंड्रीज। ऐसा नहीं कि बीमारियां किसी देश तक ही सीमित रह जाएंगी। अगर किसी कंट्री में बीमारी फैलेगी, बर्ड्स फ्लू, तो वो दूसरे को ही असर डालेंगी। तो वन मेजर इकोनॉमिकल इवेंट्स टेक प्लेस, देयर इम्पैक्ट इज फेल्ट आउटसाइड द इमीडिएट वर्ल्ड, नेशनल, रीजनल, इन्वायरमेंट एट द ग्लोबल लेवल क्लास। कि दुनिया के अगर एक कोने में जैसे कोविड-19 अगर एक जगह से पे अगर ये स्टार्ट हुआ तो फिर वाइड स्प्रेडली ये पूरी दुनिया में फैला क्लास। तो दुनिया की एक कोने में होने वाली घटनाएं पूरी दुनिया के दूसरे देशों के में चीज़ों को अफेक्ट डालती हैं क्लास। एक कंट्री में अगर प्रोडक्शन कम हो जाए तो उसका असर वर्ल्ड इकोनॉमी में दिखता है क्लास। तो पूरी वर्ल्ड मार्केट आपस में इंटरकनेक्टेड है और एक के ऊपर होने वाला बुरा असर दूसरे पे भी आपको दिखाई देता है क्लास। नेक्स्ट हेडिंग क्लास पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। देखो क्लास, जो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके कुछ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कुछ इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कुछ कल्चरल और डिफरेंट टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्लास। तो फर्स्ट वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्लास। Plus the next thing is the political consequences। क्या है क्लास है? तो there is a debate कि consequences of जो contemporary process है ग्लोबलाइजेशन का, उसमें जो political impact क्या है क्लास। तो ग्लोबलाइजेशन ने जो स्टेट सॉवरेनिटी है उसको कितना नुकसान पहुंचाया है, ठीक है, कितना प्रभावित किया स्टेट जो सॉवरेनिटी है उस पर कितना असर डाला है ग्लोबलाइजेशन है, वी विल गोइंग टू डिस्कस हियर। तो क्लास एटलीस्ट हम लोग को क्या क्या डिस्कस करना है। देखो, फर्स्ट थिंग कि एट द मोस्ट सिंपल लेवल ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन एन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी।
जो स्टेट कैपेसिटी है वो इरोज हुई है, जो राज्य के जो डिसीजन पावर्स हैं, इरोज द स्टेट कैपेसिटी। जो राज्य की जो संकल्पनात्मक कंसेप्ट था, जो उसके कार्ड थे, उसकी शक्तियों में कमी आई है क्लास। दैट इज द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे डू। जैसे राज्य का जो कर्तव्य था, राज्य के जो आइडियल पोजीशन थी कि वो क्या क्या कर सकता है, उसकी कैपेसिटी अब रिड्यूस हुई है क्लास। जो जैसे पुराना एक कंसेप्ट था वेलफेयर स्टेट का क्लास, राज्य कल्याणकारी संस्था है, राज्य का निर्माण जो है व्यक्तियों के वेलफेयर, ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के लिए, ओवरऑल वेलफेयर पर्सन्स का करना राज्य की जिम्मेदारी है क्लास। तो नाउ अब राज्य जो है अपने जो ढेर सारे काम जो थे पब्लिक वेलफेयर के, वो अब नहीं कर रहा है। अब वो अपने जो कार्यों को सीमित कर लिया है, मिनिमम कर लिया है। राज्य का कार्य मत ओनली मेंटेनेंस द लॉ एंड ऑर्डर एंड द सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन, यानी राज्य के कार्य जो है सीमित हो गए हैं। राज्य ने अपने को लॉ एंड ऑर्डर के को मेंटेन करने और कंट्री के सिक्योरिटी तक अपने को लिमिटेड कर दिया क्लास। तो जो ओल्ड वेलफेयर स्टेट है अब वो मिनिमलिस्ट स्टेट में के रूप में आ गया है क्लास। तो क्लास जो स्टेट जो सॉवरेनिटी है वो उस पर क्या इसका असर पड़ा है क्लास, ग्लोबलाइजेशन का जो राज्य की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता, उसमें कमी आई है। अब जो राज्य पुराना जो वेलफेयर स्टेट था अब वो मिनिमलिस्ट स्टेट के रूप में काम कर रहा है, यानी राज्य जो है पहले जो लोगों के वेलफेयर की बातें सोचता था, बट नाउ द स्टेट इज थिंकिंग अबाउट ओनली मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन अ सोसाइटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन। यहीं तक अपने को सीमित करके राज्य ने अपने को लिमिटेड कर लिया है क्लास। एंड जो वेलफेयर स्टेट है वो अब मिनिमलिस्ट स्टेट के रूप में जाना जाता है क्लास। एंड जो अब देखो, अगर राज्य ने ऐसा किया है, अपने को सीमित किया है, तो वाई थिंक दिस, ऐसा इसलिए ताकि जो मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट में लोगों को फ्री ऑफ कंपटीशन करने को मौका मिले। बिकॉज अब जो कैपिटलिज्म ऑर्डर आया है, ओपन मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया है, राज्य ने जो है एलपीजी को अडॉप्ट किया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इसको अडॉप्ट कर रही हैं। तो सबने अपने मार्केट, अपनी इकोनॉमी को ओपन कर लिया है, तो लोगों के लिए अवसर, चांसेस बढ़ रहे हैं क्लास। तो जब सबने अपने मार्केट को, राज्य का इंटरफेयर कम से कम है, क्योंकि राज्य ने लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ को अपनाया है। लिबरलाइजेशन का मीन्स है कि जो राज्य की जो लाइसेंस वाली सिस्टम थी कि कोई भी काम करने से पहले आपको राज्य स्टेट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और राज्य ने जो अपने स्ट्रॉन्ग और हार्ड जो रूल्स बनाए थे उसको डी रेगुलेट किया, उसको कमज़ोर किया है, ताकि एक आदमी दूसरे कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सके क्लास। तो राज्य ने अपनी नीतियों को काफ़ी लिबरल बनाया है। अगर कोई एक आदमी दूसरे कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको तमाम तरह के छूट दी जा रही हैं क्लास, सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट की, वो जैसे स्टार्टअप प्रोग्राम है। तो राज्य अब लोगों के जो पर्सनली जो भी प्रोडक्शन है या कार्य है, इन्वेस्टमेंट, उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रही है क्लास, बल्कि एक व्यक्ति दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर पाए इसको और आसान बनाया जा रहा है क्लास। एंड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, अब गवर्नमेंट सरकार ने जो है प्रोडक्शन का काम जो है अपने से इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र कर दिया है क्लास, यानी कि प्राइवेटाइजेशन, यानी कि इंडिविजुअल
को ये दिया गया है कि वो प्रोडक्शन करे क्लास, और पूरे वर्ल्ड के मार्केट आपस में इंटरकनेक्ट हैं क्लास। तो अब राज्य का जो स्वरूप है वो क्या हो गया है, वो इकोनॉमिकली हो गया, यानी लोगों के इकोनॉमिकल और सोशल वेल बीइंग की तरफ ही डाइवर्ट हो गया है क्लास। तो इन द प्लेस ऑफ मार्केट वेलफेयर स्टेट, it is the market that become the prime determinants of economical and social priority। तो इस तरह से अब राज्य जो है अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी इकोनॉमी पे ज़्यादा जोर दे रहा है क्लास, और जो इकोनॉमी है वो अब हर चीज़ को तय करती है क्लास। इकोनॉमी बिकम द प्राइम डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिकल एंड सोशल प्रायोरिटी क्लास। जो हर राज्य का जो मार्केट है वो हर उसी के हिसाब से राज्य अब बिहेव कर रहा है, अपने नीतियों को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बना रहा है क्लास। द एंट्री एंड द इंक्रीज रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ सर, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक मल्टीनेशनल कंपनियां जब दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो जो अदर कंट्रीज़ है वो कोई भी अपने फैसले अब्सोल्यूट डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि उसकी कंट्री में अगर किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का अगर बिजनेस है, तो राज्य कोई भी फैसला लेने से पहले बहुत कुछ सोचता है। अपनी मार्केट को वो ख़राब नहीं करना चाहता है क्लास, और अपने मार्केट के अकॉर्डिंग ही वो अपने कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको तय करता है क्लास। एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस द कैपेसिटी। देखो, ऐसा नहीं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो राज्य की डिसीजन मेकिंग है या एब्सोल्यूट जो सॉवरेनिटी है उसमें कमी आई है। देखो, जो राज्य की सॉवरेनिटी है वो आज भी अनचैलेंज है, ठीक है। देखो, जो पुराना जो ओल्ड जेलस और राइवल्स जो था कंट्री में था, वो अभी हैव नॉट चीज टू मैटर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यानी जो दुनिया के तमाम देशों के बीच में जो कंपटीशन चल रहा था, जो एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता थी, जेलस थी, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है क्लास। द स्टेट कंटिन्यू टू डिस्चार्ज इट्स एसेंशियल फंक्शन। राज्य जो है अपने एसेंशियल फंक्शन में, जैसे लॉ एंड ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी का तो काम कर ही रहा है, एंड कॉन्शियसली विड्रॉल फ्रॉम द सर्टेन डोमेन फ्रॉम विच इट्स विशेष टू। स्टेट कंटिन्यू टू बी, राज्य आज भी महत्वपूर्ण है क्लास। ग्लोबलाइजेशन ने जो स्टेट कैपेसिटी को और ज़्यादा बूस्ट किया है क्लास ग्लोबलाइजेशन ने। द इन्हांस द टेक्नोलॉजी अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट कलेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सिटीजन। देखो, टेक्नोलॉजी के बढ़ जाने की अवेलेबिलिटी के कारण द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट टू कलेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सिटीजन। अब जो है राज्य जो है टेक्नोलॉजी की वजह से अपने नागरिकों के बारे में अधिक से अधिक जानकारियाँ हासिल कर पा रहा है। विद दिस ऑफिस इन जो इंफॉर्मेशन की मदद से द स्टेट इज़ बेटर एबल टू रूल, नॉट लेस एबल। जब राज्य को अपने नागरिकों के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ हैं, कम्युनिकेशन की वजह से, मीडिया की वजह से नागरिकों के बारे में राज्य को ज़्यादा मालूम है, तो अब वो बेटर वे में रूलिंग कर पाएगी। दस स्टेट बिकम मोर पावरफुल दैन दे वेयर अर्लियर एन आउटकम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। यानी कि नई टेक्नोलॉजी के आने से पहले राज्य जितना पावरफुल था, अब
उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल हो गया है, क्योंकि राज्य को स्टेट इज़ नो द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ देयर पीपल थ्रू मीडिया एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, और राज्य उसी हिसाब से अपने डिसीजन, अपने को प्लानिंग, अपने फैसले को करता है। तो जो आज का राज्य है वो पहले की तुलना में मोर अकाउंटेबल और मोर अवेयर है, ज़्यादा पावरफुल बन गया है क्लास। द नेक्स्ट consequences इज इकोनॉमिकल consequences क्लास। इकोनॉमिकल consequences, नेक्स्ट थिंग इज क्लास इकोनॉमिकल consequences क्लास। देखो क्लास, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन जो इकोनॉमिकल क्या असर पड़ा है क्लास। द मेंशन ऑफ द इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन ड्रॉ आवर अटेंशन इमीडिएटली to the role of international institution like IMF or WTO, Indian International Monetary Fund or World Trade Organization। इनका जो रोल है क्लास इंक्रीज हो गया है क्लास, एंड दे प्ले इन डिटरमाइनिंग the economical policy across the world क्लास। फिर भी जो ग्लोबलाइजेशन है मस्ट नॉट बी व्यू इन सच ए नैरो टर्म्स। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का जो इकोनॉमिकल काजेज है, जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको केवल नैरो सेंस में, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या WTO का जो इंटरफेरेंस है उसके तक लिमिटेड करके नहीं चलना है क्लास। इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व मेनी एक्टर्स अदर दैन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। अ ब्रॉडर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन रिक्वायर्स अस टू थिंक एट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिकल गेन। जो इकोनॉमिकल जो गेन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसको हमको समझना पड़ेगा। who get the most from the globalization and who get less। इकोनॉमिकल जो ग्लोबलाइजेशन का जो इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट्स है उसमें हमें ये पढ़ना है कि उससे होने वाले गेन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कौन ज़्यादा पा रहा है, कौन कम पा रहा है, और ग्रेटर इकोनॉमिकल फ्लो अमॉन्ग द डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। Some of this is voluntary and some forced by international institution and powerful country। तो what we often call economical globalization usually involves greater economical flow among the different countries of the world। मतलब इकोनॉमिकली चीज़ें फ्लो कर रही है कंट्री, इन इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टिविटी क्लास। सम ऑफ दिस इज वॉलेंट्री एंड सम फोर्स बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पावरफुल कंट्री, एज वी सा इन द एग्जाम्पल एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर क्लास। द फ्लो और एक्सचेंज कैन टेक वेरियस फॉर्म, जैसे कमोडिटीज़ है, कैपिटल है, पीपल है, आइडियाज़ हैं, दे आर मूविंग। तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ इन्वॉल्व ग्रेटर ट्रेड इन द कम्युनिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि जो भी कम्युनिटीज़ है उसका पूरे वर्ल्ड में ट्रेड व्यापार हो रहा है क्लास। द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाई the different countries on allowing the imports of some different countries have been reduced। देखो पहले जो ट्रेड बैरियर्स थी, जैसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का जो इस्तेमाल करके बाधाएं पैदा करके जो कंट्रीज बेनिफिट ले रही थी, नाउ अब जो ट्रेड बैरियर है क्लास वो फिनिश हो गया है, एंड अब जो देश हैं वो ज़्यादा फ्रीली वर्क कर सकते हैं क्लास। And the restriction on the movement of capital across the country has
ऑल्सो बीन रिड्यूस, जो ट्रेड बैरियर्स हैं क्लास उसको रिड्यूस कर दिया गया क्लास, एंड दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्लास।